કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા હવે હું નેહા દીદીને ઇન્વાઇટ કરું છું. નેહા દીદી આપણા કોર ટ્રેનર છે અને ગીતા લેવલ 1 ની લગભગ 20 એટલે 20 કક્ષાઓમાં ખૂબ સરસ રીતે એમનો પ્રથમ અનુભવ હતો અને ખૂબ સરસ રીતે એમને કક્ષાનું સંચાલન કર્યું છે. અલગ અલગ આપણા ઓડિયોઝ અને વિડીયોઝને કરેક્ટ કરી અને ગીતા પરિવારને મોકલી અને આપને વધારે મોટિવેટ કરવા માટે હંમેશા એ તત્પર જ રહે છે. નેહા દીદી એ પોતાનો રેકોર્ડેડ દીપ પ્રજ્વલનનો એક વિડીયો મોકલ્યો છે, એટલે આપણે કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત દીપ પ્રજ્વલનથી કરીશું. ગીતાજી ઓડિયો પ્લે નથી થઈ રહ્યો, ઓડિયો સાથે પણ પ્લે કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. L1ના આનંદોત્સવની શરૂઆત આપણે ગણપતિજી, સરસ્વતી માતા અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરતા દીપ પ્રજ્વલન કરીને શરૂઆત કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો વિવિધ જગ્યાએ સ્થાયી થયેલા આપણા સાધકો દેશ વિદેશથી, અને આજે હું આમ તો નેહા દીદીને છેલ્લા 1 વર્ષથી ઓળખું છું, કારણ કે નેહા દીદી મારા જ એક સ્ટુડન્ટ હતા લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં, પણ આજે એમના ઘરના કાનાજીના દર્શન અહીંયા બેઠા બેઠા ઇન્ડિયામાં થઈ ગયા, તો ખૂબ ધન્યતા અનુભવું છું. હવે આગળ આપણા જ એક સાધક છે, he is from California, USA, અમિતભાઈ દવે. અમિતભાઈ દવેના સન છે અયાન દવે. અયાન દવે શંખનાદથી આ કાર્યક્રમનું શુભ શરૂઆત કરશે. અયાનભાઈ. ખૂબ સરસ. આની સાથે સાથે વિદેશમાં રહીને ભારતીય સંસ્કૃતિ, એવું લાગતું જ નથી કે આ વિદેશનો વિડીયો છે. જ્યારે પણ મારા પરિચિતો અને પરિવારજનો, મારા ઘણા બધા પરિવારજનો પણ વિદેશમાં સ્થાયી છે, પણ ભારતીય સંસ્કૃતિને બહુ સારી રીતે સાચવી અને જાળવી રાખી છે, એનો આપણે ખરેખર બહુ જ ગર્વનો અનુભવ થવો જોઈએ. આની સાથે સાથે અમિતભાઈએ અયાનનો એક રેકોર્ડેડ વિડીયો પણ મોકલ્યો છે, જેમાં એમણે ભગવદ્ ગીતાનો 12મા અધ્યાયનું અનુપઠન કર્યું છે આંખો બંધ કરીને. એટલે આટલી નાની ઉંમરમાં કંઠસ્થ કરેલા છે. તો I mean, if this is the beginning, just imagine what should be, the journey of Ayan. So I really appreciate, and
as a father, Amit bhai should be proud of Ayan. In fact, all of us should be proud of him. રવિ પ્રકાશ, રવિ નો મતલબ થાય છે સૂર્ય, અને સૂર્ય પ્રકાશ વિના સવાર તો થાય જ નહીં. ઇન્ડિયામાં તો હવે સવાર થઈ રહી છે, પણ સૂર્યોદય થાય એના પહેલા આપણા કાર્યક્રમમાં સૂર્યનો પ્રકાશ પાથરવા હું રવિ પ્રકાશજીને ઇન્વાઇટ કરું છું. રવિ પ્રકાશજી અવારનવાર આપણા કક્ષામાં જોડાતા હતા અને આપનું માર્ગદર્શન કરતા હતા. રવિ પ્રકાશજી, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. रवि प्रकाश जी उदयपुरથી છે, ગુજરાતી શીખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, અને કાલે ઘણી બધી અમે રમૂજ કરી જ્યારે અમે મીટિંગ કરી હતી કે રવિ પ્રકાશજી તમારે થોડું તો ગુજરાતી બોલવું જ પડશે. તો રવિ પ્રકાશજી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. Thank you, Harish Bhaiya. I welcome all in this program of Anandotsav of our level 1 ending program, and I am very happy to say that we all have done this journey in a very good way, in a very well way. Participants as well as my colleagues, my associates, all have worked very well, and now it is the first phase is going to end now, but we have to continue for the second phase and third phase and fourth phase also. So now I see that our batch coordinator Ramesh ji is there, so I would like to invite Ramesh ji sir. Okay, गीता दीदी, meanwhile आप रमेश भैया ने स्पॉटलाइट करो प्लीज. आप सभी को प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन. हरीश भाई राठौर को मैं सुन रहा था और अपने टेक मित्तल मेहता जी, गीता कमलेश जी और रवि प्रकाश जी तो अपने जीसी हैं ही, और अपने चीफ गेस्ट गोविंद बाबू भी हैं जी. उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा. तो जैसा रवि भाई ने कहा कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक स्तर 1 को जो है कंप्लीट कर लिया है और आगे की यात्रा हम लोगों को चालू करनी है. तो इस स्तर 1 को आप सबने मिलकर पूरा किया, सफलता से पूरा किया. आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन. और गुजराती के लिए जहाँ तक हरीश भाई बोल रहे थे कि रवि भाई सीख रहे हैं गुजराती, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ. हाँ, गुजराती भाषा में आप लोग जो बोलते हो वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है. तब भी थोड़े थोड़े वर्ड्स जो है गुजराती के सीखे हैं. गुजराती मित्र हैं हमारे यहाँ कलकत्ता में. तो और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी कि वो अयन दवे जो बच्चा है उसने शंख ध्वनि की, शंख बजाए, और अभी 12वें अध्याय का वो अनुपठन भी करेगा, कंठस्थ है उसको. उनके पिता अमित भाई को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद. और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को लग रहा है कि इस ग्रुप में कुछ एनआरआईज भी हैं, और एनआरआईज हमारे प्रवासी भारतीय यदि भारत से बाहर रह करके भारतीय संस्कृति से जुड़े रहते हैं और अपना वो करते हैं, भारत से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इससे बड़ी बात है कुछ है नहीं. और उनको देख के बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है कि भाई बाहर रह के भी उन्होंने अपनी जड़ को भूला नहीं है, अपनी उनकी जड़ें जो है भारत में ही है. तो बहुत बहुत सब भारतीय प्रवासी जो अपने भाई हैं जो गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं या सीख रहे हैं, या और बहुत से प्रवासी भारतीय हमारे अलग अलग देशों से सेवा भी दे रहे हैं अपने गीता परिवार में. उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन. और अपने जितने भी गीता साधक जो आए हैं और अभी आनंदोत्सव में आए हैं, ये सबका आप लोगों का स्तर 1 पूरा करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन. आप लोग स्तर 2 में जाएं, स्तर 3 कंप्लीट करें, स्तर 4 कंप्लीट करें. भगवान, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि हम सब पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा हुई है, तभी हम गीता से जुड़े हैं और गीता का अध्ययन हम लोगों ने शुरू किया है. विशेष ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं जो है अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप लोग का पुनः अभिनंदन करता हूँ. धन्यवाद. रमेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं रमेश भैया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, हालांकि ये पहले देना था पर मैं बता दूंगा. Ramesh Bhaiya, by profession, he is a chartered accountant and an industrialist, and he joined Gita Parivar in September 2020, and he has passed Gita Vrati
examination in July 2022. Now he is performing seva as a member of Bangla translation team and member of newsletter team, and he has worked as GC in so many batches, and now he is working as a batch coordinator. So I thank to Ramesh Bhaiya for guiding us and giving us support. Thank you, Ramesh Bhaiya. अपने गीता परिवार का मूल मंत्र ही है गीता पढ़ें, पढ़ाएं और आचरण में लाएं। गीता परिवार ने हम लोगों को ये फोरम दिया, हम गीता पढ़ रहे हैं, और जितने भी अपने ये L1 के भी अपने साधक भाई हैं, उनको ही बोल रहा हूँ कि किसी न किसी रूप में आप गीता सीखिए भी और गीता अपनी सेवा प्रदान कीजिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसकी जानकारी आपको मिलेगी। आप किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी रूप में सेवा दे सकते हैं, और सबसे डिफिकल्ट काम तो गीता को आचरण में लाना है, लेकिन हाँ, प्रयास करते करते गीता भी आचरण में आती है। इससे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। गीता इज सच अ मार्वेलस बुक which changes the condition and thinking of a person. So let us be with Gita Parivar. Thank you all. Dhanyawad Ramesh Bhaiya. Geeta Didi, now we can see our chief guest Govind Babu Bhaiya has also joined us. So if you allow, we can welcome him also. Yes. गोविंद बाबू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं दो पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगा। गोविंद है कृष्ण का दूसरा नाम, गोविंद है कृष्ण का दूसरा नाम, भगवत सेवा है जिनका काम, सेवा निवृत्त होकर करते आराम, कृष्ण निवास है उनका धाम। जहाँ कृष्ण का निवास है वहीं उनका धाम है, वहीं उनका जो है रहन सहन और खान पान है। तो गोविंद भैया का बहुत बहुत आभार, स्वागत है। गोविंद भैया के बारे में, गोविंद भैया आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करें। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहले डॉक्टर हरिश्चंद्र जी, नमस्ते। गीता दीदी, नेहा दीदी, रवि भैया और रमेश भैया का मैं जय श्री कृष्ण कहता हूँ। नेहा दीदी भी हैं। कृष्ण। सभी साधकों का जय श्री कृष्ण, स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य गुरु गोविंद देव जी का को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। रमेश भैया तो बहुत सीनियर है हमसे, नहीं, कोई इस रास्ते में कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है भैया, हम लोग सब गीता सेवी है और सहयोगी है, साथी है। तो हम पे बड़ी कृपा हुई कृष्ण की, प्रभु की बड़ी कृपा है कि सबसे पहले तो हम भारत में पैदा हुए, हम भारतीय, और भारत के बाद हम हिंदू हुए। ये दूसरी कृपा है प्रभु की। और हिंदू के बाद हमें गीता परिवार में प्रवेश मिला, हमें गीता परिवार में हम ज्वाइन किए, कहीं से भी किसी भी कारण ज्वाइन किए हों, किसी ने बताया है, कोई लिंक हमारे पास पहुंच गया, या अन्यथा कोई भी तरीका हो सकता है, हम गीता परिवार से जुड़े। ये बड़ा हमारा सौभाग्य, बड़े हमारे पुण्य कर्मों का फल है कि हम आज गीता परिवार से जुड़े हैं, और उसके बाद हम गीता पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो साधक भाई बहन, हम सब L1 में हैं। अब आज आनंद उत्सव मना रहे हैं। जो हमने किया पूरे 1 महीने, जो हमने पढ़ा सीखा, उसका समापन दिवस, समापन तो अभी नहीं होगा, लेकिन अभी स्तर 1 का हम समापन कर रहे हैं और उसकी खुशी मना रहे हैं कि हम गीता को पढ़ने में, जिसको कि बहुत सारे लोग हम में से कठिनाई महसूस करते होंगे, समझ नहीं पाते होंगे, संकोच रहता होगा कि हम क्या करें, कैसे करें, तो उसको आज हम अपने गुरुजनों की कृपा से, उनकी सहायता से, डॉक्टर हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से सिखाया होगा, मैं कभी आया तो नहीं क्लास में, तो अब जैसा उनकी बातचीत से मुझे लग रहा है कि बड़े
विद्वान व्यक्ति हैं तो अच्छे से सिखाया होगा उन्होंने। तो हम अब इस योग्य हो गए कि हम गीता को बोल सकते हैं, ये बड़ी बात है। इसके बाद मतलब हमारी 4 धाम की यात्रा है, हम 4 स्तर में इसको पूरा करते हैं। गीता परिवार ने इतना सुंदर समायोजन किया है कि एक एक करके, अब देखिए नॉर्मली गीता कोई पढ़ेगा तो अध्याय 1 पढ़ेगा, अध्याय 1 में कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ देगा। लेकिन इसको इस तरीके से समायोजन किया है। सबसे पहले अध्याय 12 जिसमें सबसे कम श्लोक है, श्लोक कम है और आकर्षित करता है, तो उसको दिया। इस प्रकार समायोजन बड़ा अच्छा किया है गीता परिवार ने। तो उस हिसाब से हमने L1 किया, हमने 2 अध्याय अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं। आगे L2 करेंगे और 4 अध्याय देखेंगे, L3 करेंगे, L4 करेंगे। तो इस एक तो मेरा आग्रह, सबसे निवेदन होगा कि इस गीता यात्रा को सतत जारी रखें, नंबर 1। नंबर 2 कि जो विवेचन सत्र हैं उनको छोड़े नहीं, क्योंकि देखिए गीता बोलना सीखना एक बात है, लेकिन गीता के बोलने सीखने से पता नहीं चलता कि हम क्या सीख रहे हैं। तो हमें यह भी पता चले कि हम सीख क्या रहे हैं। तो इसके लिए हम विवेचन सत्रों में जाएं, उनको सीखें और बाद में भी सुनते रहें, क्योंकि कोई 10-15 श्लोक का एक बार कोई भी बता देगा, आशु भैया बताते हैं, संजय भैया बताते हैं, और भी लोग बताते हैं, लेकिन हम 1 घंटे में कुछ सुन लेंगे, लेकिन बाद में हमें बार बार सतत अभ्यास करने से कुछ पता लगेगा कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो गीता का सतत अभ्यास भी करते रहें। और एक बड़ी बात है कि अब हमने यात्रा शुरू करी है तो इस यात्रा को छोड़े नहीं, बीच में नहीं छोड़े किसी भी हालत में। एक अन्य बात यह भी है कि क्योंकि प्रभु की हम पे कृपा है, इसलिए हम इस कृपा को और बढ़ाएं अपने ऊपर। अब वो तब होगा जबकि हमने जो कुछ लिया है, परिवार से जो लिया है, परिवार को थोड़ा बहुत उसको रिटर्न भी करेंगे। रिटर्न कैसे करेंगे? तो रिटर्न करने का तरीका आप देखो, हरीश भैया हैं या गीता दीदी हैं या नेहा दीदी हैं, सभी सेवा दे रहे हैं, सभी निशुल्क सेवा दे रहे हैं। हमें निशुल्क मिलता है तो निशुल्क हम देवी परिवार को। तो हम गीता सेवी बने। गीता सेवी बनने के लिए लिंक है, वैसे भी आपके ग्रुप पे भी आया होगा, बाद में भी गीता सेवी की learngita.com पे लिंक है, आप उसको जाके रजिस्टर कर सकते हैं, गीता सेवी के कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। कई विभाग हैं, आप हमारी तरह जीसी बन सकते हैं, हम लोग जीसी हैं, रवि भैया यहाँ में या रमेश भैया भी जीसी से शायद प्रारंभ किए होंगे, तो जीसी बन सकते हैं। हाँ, शिक्षक बनने में थोड़ा तकलीफ ज्यादा होगी, जिज्ञासु करना पड़ेगा कम से कम उसको। टेक असिस्टेंट बन सकते हैं, और कई 35-37 विभाग हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी सेवा कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो प्रचारक बन सकते हैं। प्रचारक में कुछ भी नहीं करना है आपको, खाली आप व्हाट्सएप तो सारे करते हैं, ज्यादा फॉरवर्ड्स करने हैं आपको, ज्यादा कभी कुछ बैनर्स वगैरह ले लिए तो उसको भी आप लगा सकते हैं, तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो गीता का प्रचार प्रसार इसलिए भी जरूरी है कि आज विश्व में अशांति बहुत है, और गीता से बढ़िया जीवन जीने की कला कोई नहीं सिखा सकता। पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है, भारत को तो है ही, सारी दुनिया को जरूरत है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, और उसके लिए जो हमने सीखा, हमने कुछ प्राप्त किया। अब देखो गीता परिवार कितना बढ़िया है, सारे देने में जुटे हुए हैं, 4-5 हजार कार्यकर्ता हैं, सभी दे रहे हैं और सभी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। हमें मिला, हमने ज्वाइन किए,
तो हमें मिला तो हम भी दे रहे हैं। देना चाहिए, सबको दो, सब दीजिए। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। गोविंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। गोविंद बाबू भैया इज ए रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. He lives in Greater Noida, UP. He joined L1 in January 2022 and he has completed his L3 in 1st of November 2022. He has given his seva as a L1 GC in March and April 2022 batches and given seva as L3 GC in May 22 batches, and now he is a GC supporter. So we are so much thankful to Govind Babu Bhaiya for giving us guidance and support. Thank you, Govind. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बहुत गीता दीदी, सुंदर आप शब्दों वो में आपने बताया। जो आशु भैया का वो है वीडियो, वो चला दें गीता दीदी। जी भैया। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज इस प्रथम स्तर के आनंद उत्सव में आपसे वार्ता करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवत गीता हम सबके जीवन में आ गई, हम सब उसको शुद्ध उच्चारण करना सीखने लग गए, जीवन में कुछ कुछ लाने का प्रयास भी करने लग गए। ये भगवान की अत्यंत महती कृपा से जुड़ा है। हम सब धन्यभागी हैं। पता नहीं कौन से पुण्य किए हमने किए, कि हमारे पूर्वजों ने किए, कि हमारे पर महापुरुषों की कृपा हो गई। ये घटना स्वाभाविक रूप से घट रही है। अब ये अवसर जब हम लोग को मिल गया है तो हमें चूक नहीं। भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें 69वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा करी, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्य संशयः। अरे जो ये भगवत गीता के मार्ग पे चलेगा वो मुझको प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं, असंशय। भगवान ने गारंटी कर दी आज इस प्रार्थना के करके नहीं। भगवान ने कहा जो इसको पढ़ेगा और पढ़ाएगा, जो इसका प्रचार करेगा, इसको लोगों को इस काम में लगाएगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाए। सभी लोग भगवत गीता में लगेंगे नहीं, लग पाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संभव है। लेकिन हम सब प्रयास करें कि भगवान ने जो यशो सर्व उसको प्रदान किया है अपने जीवन कृतार्थ करने के लिए, हम सब उसका उपयोग कर सकें। कोई बाधा आए, कोई मुश्किल आए, अब ये काम छूटे नहीं। 18 अध्याय होने से पहले हमारी यात्रा रुके नहीं। अभी तो स्तर 1 पर थे। आपको छोटे छोटे बातें बतलाई गई, का खा गा घा वर्णमाला सिखाई, अनुस्वार विसर्ग सिखाए, ह्रस्व दीर्घ सिखाया, कैसे उच्चारण के नियम है, आदि आदि बातें बतलाई। और फिर कहा कि कागज लो और पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेज दो। बड़ा आनंद हुआ, इतनी अच्छी परीक्षा, इतनी सरल। और आप सबने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गीता गुंजन के, जिनको नहीं मिले उनको आ जाएंगे। ये अत्यंत गौरव के आनंद की बात। लेकिन आगे जब स्तर 2 पे जाएंगे ना, तब ये वीडियो बनाने को नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे 12वां 15वां और 16वां अध्याय कंठस्थ करिए और कंठस्थ करके गीता जिज्ञासु की परीक्षा दीजिए। अनिवार्य नहीं होगी वो, जिनको समय की दिक्कत है, जिनको कुछ और मामला है, जो कहते हैं हम बूढ़े हो गए अब हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन सभी को करना चाहिए। अरे 70 वर्ष के, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 82 वर्ष के, 85 वर्ष के बुजुर्ग गीता जिज्ञासु पाठक पथिक परीक्षा में आते हैं और पूरे नंबर लेके जाते हैं। हम तो देखते रह जाते हैं, उनको प्रणाम करते रहते। इतनी कर्मठता से लोग लगे हुए, हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थीकरण करके परीक्षा देते। अनिवार्य नहीं कि उसी मंथ दे, उसी महीने दे, अगले महीने भी दे सकते। अब आप रुकना नहीं,
18 अध्याय पूरे होने से पहले यात्रा रुके नहीं, इसका ध्यान रखें। हम सब मिलकर गीता माता की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल करें। मानव जीवन जो हमको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो, अपने इस जीवन को आनंदमय बनाएं, शांतिमय बनाएं और विजयी बनाएं। ऐसे भगवत गीता की कृपा हम सबके जीवन पर हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबके जीवन पर हो, ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, सभी को जय श्री कृष्ण। गीता, अभी हमारे आशु भैया ने और गोविंद भैया ने और रमेश भैया ने सभी ने एक बात कही है, जिनको मैं इन 4 पंक्तियों के द्वारा आपको कहना चाहूंगा। गीता मार्ग पर बढ़ाए हैं कदम, सफर अभी बाकी है, मंजिल अभी दूर है। गीता मार्ग पर बढ़ाए हैं कदम, सफर अभी बाकी है, मंजिल अभी दूर है। भगवत कृपा से मिला है अवसर, भगवत कृपा से मिला है अवसर, बीच में छोड़ा तो बड़ी भूल है, बीच में छोड़ा तो बड़ी भूल है। और एक बहुत ही अच्छा सा गीत है जिसकी 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, उसको मैं बोलकर और बजा करके बताऊंगा आपको। 2 लाइनें हैं। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। यदि हम सूरज नहीं बन सके तो दीपक बनकर जलते रहें और संसार को रोशनी देते रहें। धन्यवाद। नेहा दीदी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप नेहा दीदी आगे पार्टिसिपेंट्स को आप आमंत्रित करें और हरीश भैया उनका अनुवादन करेंगे। तो नेहा दीदी आप आगे। जी જી, હવે દક્ષાબેન પટેલ ને આપણે બોલાવીશું। ભાગ્ય વિના ના મળે ભગવાન રે, કરમ વિના કાંઈ નથી। દક્ષાબેન પટેલ એ ભજન પ્રસ્તુત કરશે। દક્ષાબેન પટેલ ભજન પ્રસ્તુત કરે એના પહેલા તો રવિ प्रकाश भैया વિશે तो कहવું જ પડશે। रवि प्रकाश भैया, मुझे कहना चाहिए कि ये तो हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज पैकेज था। अभी भारत में सूर्योदय होने वाला है और साथ साथ में बंसी की मधुर ध्वनि से वातावरण इतना ज्यादा दिव्य हो गया है, मैं नहीं आपको बता नहीं सकता। तो थैंक यू फॉर सच अ सरप्राइज एंड हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका सहयोग मिला, ये बहुत अच्छी बात है। ગીતા દીદી, દક્ષાબેન એટલે આઈ થિંક જે DAXA છે ને એ, હા એ દક્ષાબેન। जय श्री कृष्ण बधाने। જય શ્રી કૃષ્ણ। भाग्य विना ना मळे भगवान रे, करम विना काई नथी। एवा विधाताए लख्या जुदा लेख रे, करम विना काई नथी। एक माटीना रमकड़ा सर्जन हारे घड्या गाठ, मृत्यु लोक માં મોકલ્યા રે। હે ના વિધાતાએ લખ્યા જુદા લેખ રે, કરમ વિના કાંઈ નથી। કાગળ હોય તો વાંચીએ, લખ્યા કર્મ ના વંચાય। અકળ કળા મારા નાથની રે,
હે એ તો કોઈથી કરી ના શકાય રે, કરમ વિના કાંઈ નથી. જનની જનેતા જન્મ આપે, કર્મ આપી શકે નહીં કોઈ. હાટે વેચાતા ના મળે રે, હે સાચા સદગુરુ ઝાલે જમણો હાથ રે, કરમ વિના કાંઈ નથી. કોરા કાગળ જેવો અવતર્યો અને જીવને જાજુ નહોતું જ્ઞાન, સંસારીએ એને ભોળવ્યો રે, હે પછી માયા ખવરાવે જીવને માર રે, કરમ વિના કાંઈ નથી. પ્રગટ પ્રભુ છે તારા દેહમાં અને બહાર ગોતવા સિદ્ધ જાય, જ્યાં ત્યાં હળિયું કાઢતા રે, હે એ તો નક્કી નરકમાં લઈ જાય રે, કરમ વિના કાંઈ નથી. સત્સંગી સાચા હોય તે સાંભળે, અજ્ઞાની બોલે ખોટા બોલ, મૂર્ખ મનમાં ના ધરે રે, પછી સાચા સત્સંગ કરે મૂલ રે, કરમ વિના કાંઈ નથી. આંગણે આવેલાને રોકીએ અને મૃત્યુ કોઈથી ના રોકાય, જન્મ મરણ હરિના હાથ મારે, હે દાસ પુરુષોત્તમની વિનંતી સ્વીકાર રે, કરમ વિના કાંઈ નથી. જુમ મંડળની વિનંતી સ્વીકાર રે, કરમ વિના કાંઈ નથી. ભાગ્ય વિના ના મળે ભગવાન રે, કરમ વિના કાંઈ નથી. એવા વિધાતાએ લખ્યા જુદા લેખ રે, કરમ વિના કાંઈ નથી. કૃષ્ણ કનૈયા લાલની જય, રામચંદ્ર ભગવાનની જય. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ दीदी. खूब सुंदर रजुआत थी दक्षा दीदी. दक्षा दीदी के लिए रवि भैया मैं कहूंगा कि उन्होंने एक भी कक्षा छोड़ी नहीं है आज तक, और बहुत ही ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है हर एक कक्षा में, और शी इज वेरी लाइवली एंड शी परफॉर्म वेरी वेल. दक्षा दीदी करम विषयનું મહત્વ સમજાવ્યા વગર કે સાથે આપે આ સુંદર ભાવગીત રજૂ કર્યું એના બદલ આપને ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એક એક શબ્દ આ ગીતનો બહુ માર્મિક હતો અને જીવનમાં ઉતારવા લાયક હતો, કારણ કે કર્મ જ નક્કી કરશે કે આપણો આગલો જન્મ કેવો હશે. અને આપણું જે મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે કે ગોપાલના ધામમાં જવું, સ્વર્ગલોક તો બધા ઈચ્છે છે, પણ સ્વર્ગલોક પછી પણ પાછું પૃથ્વીલોક પર તો આવવું જ પડે છે, મૃત્યુલોકમાં. એટલે આપણે બધા ગોવિંદ ધામમાં પહોંચીએ એની સાથે જ એની બધાને શુભકામનાઓ એની સાથે. थैंक यू सो मच दक्षा दीदी. भैया मीटिंग शायद एंड होने वाली है, तो क्या हम मीटिंग अभी एंड कर दे, जिससे नेक्स्ट प्रस्तुति बीच में ही रुक ना जाए? क्या Sure. I have written a message also. Yes. So all have to rejoin again, please. આપ સૌ સાધકો ફરીથી આ જ લિંક પર જોડાજો, કારણ કે આપણે 2 થી 3 મીટિંગ 40 મિનિટની લિમિટેશન છે, એટલે 40 મિનિટ્સ પછી ઓટોમેટિકલી મીટિંગ એન્ડ થઈ જશે. એટલે જેવી મીટિંગ એન્ડ થાય ફરીથી એ જ લિંક પર જોઈન થશું. એવું જ ફરીથી જો થાય તો ફરીથી આપણે ત્રીજી મીટિંગ પણ કરીશું. આનંદ ઉત્સવની અંદર ટાઈમનો કોઈ બાદ ન હોવો જોઈએ. આઈ નો કે ઘણા બધા સાધકો વિદેશમાં છે એટલે ટાઈમ ડિફરન્સ હશે જ, પણ આજનો દિવસ આપ ગીતા પરિવાર માટે લાઈક ફાળવી શકો છો એવી મારી નમ્ર અપીલ છે આપણે બધાને. how much time is left? જી ખતમ જ થઈ ગયું ચાલુ. અચ્છા ઠીક છે, આપણે ફરીથી જોઈન થઈશું. દક્ષાબેન નું મનોભાવ અત્યારે જ લઈ લીધું. જી સર, જી નેક્સ્ટ જોઈન થશું આપણે ત્યારે દક્ષાબેન નું મનોભાવ પણ લઈ લીધું. હા દક્ષાબેન, તમારા એક્સપિરિયન્સીસ જણાવી શકો છો ગીતા પરિવાર વિશે. દક્ષાબેન પટેલ. હા નહીં જી, આપણે રીજોઈન થઈએ પછી. ઓકે ઠીક છે.
ઓકે, લેટ અસ રીજોઈન. દક્ષાબેન, ત્યાં સુધી આપ આપના અનુભવ કેવા રહ્યા એના વિશે થોડું વિચારીને રાખી શકો છો, અને રીજોઈન કર્યા પછી આપ આપના અનુભવ જણાવી શકો છો. ભાઈ રેકોર્ડિંગ દીદી, આપનો અવાજ નથી સંભળાતો ક્લિયરલી. ગીતા દીદી. હેલો. હા દીદી. હા જી, એન્ડ કરું છું મીટિંગ. ઓકે. જી.